سیلاب کی تباہکاریوں کے حوالے سے آپ کو خبر دیں گے۔ ڈی جی خان میں دریائے سندھ کے علاقوں میں سیلاب کی تباہکاریاں، پانی کی سطح کم ہونے کے بعد نقصانات سامنے آنے لگے۔ سیلاب کی تباہکاریوں میں کئی بستیاں ڈوب گئیں، کئی ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں تباہ ہو گئیں۔ معزہ دالان، سکھیرا آرائیں، پرانا ڈیرہ، میر حسن میں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتانے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف محسن الملک نے۔ جی محسن، تفصیلات بتائیے گا۔ سیلاب کی اس وقت بھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہی ہیں وہ فصلیں ہیں جو کہ اس وقت مختلف علاقوں میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک سے پانی آیا اور پانی آنے کے بعد جو حشر ہوا ہے، اس وقت میں آپ کو کپاس کا حال بتا دوں کہ کپاس بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یہ اس کا پتا ہے جو کہ مر گیا ہے اور اس طریقے سے یہ اس کی کنڈیشن ہے اور یہ یہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے میری، اسی طریقے سے ہی کپاس نظر آ رہی ہے۔ آگے سامنے جتنے کھیت ہیں سب ختم ہو گئے ہیں۔ کئی بستیاں جو ہیں اس وقت تباہ ہو گئی ہیں، پانی اتر رہا ہے لیکن تباہ کاریاں ابھی جاری ہیں۔ لیکن جو سپنے تھے، جو کسان کے خواب تھے، وہ اس پتے کی طرح مرجھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو موزہ لارڈن میں بھی سیلاب میں محمد نواز شاہ عرض کرنا پیا موزہ لارڈن سابقہ جنرل کونسل وزیر اعلیٰ دے اساں ہمسائے ہیں اندے علاقے دے ساڈا لارڈن دا موزہ اکثر تباہ تھی گئے، کوٹلا میر سان تباہ تھی گئے، نہ مکئی بچی ہے نہ کپاہ بچی ہے نہ سبزیاں بچن۔ اتنا کوئی محکمہ کوئی افسر نہیں آیا، کوئی محکمہ مال دا بندہ نہیں آیا، کوئی آویا چیک کریا دیکھیا۔ ٹھیک ہے، ہاں جی بستیاں بھی بڑے بستی تھوڑے میں بڈین زیادہ تر مطلب ہے زراعت نقصان تھی ہے، کپاہ نقصان ہوئی ہے، مکی ہوئی ہے، بستیاں تھوڑے ٹھٹے مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، کپاہ ساری ختم تھی؟ ہاں کپاہ ساری ختم ہو گئی، کوٹلے کی کپاہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ چاول کی کیا پوزیشن؟ چاول بھی تقریباً ادھے ختم ہو گئے، جنہیں پانی تو پھر گئے وہ ختم ہو گئے، جنہیں پانی اتو نہیں پھریا وہ امید ہے۔ سبزیاں لائے نہیں سبزیاں لائے، سبزیاں ختم ہو گئی۔ بالکل جی، یہ طریقہ ہے جی اس وقت سیلاب کے بعد جو ہے تو یہاں پر ان کی امداد آئی اور ان کی جو فصلیں تھیں جس میں خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ پانی کی سطح کم ہونے کے بعد نقصانات سامنے آنے لگے ہیں۔ بیورو چیف محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ڈی جی خان میں کوٹلہ پیر حسین میں سیلاب کے باعث فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پورے علاقے میں کریلا، توری اور کدو سمیت متعدد سبزیوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں اقبال صادق۔ بالکل، یہ ڈیرہ غازی خان کا علاقہ کوٹلہ میر حسن ہے جہاں پر اس وقت موجود ہیں۔ سیلابی ریلا آیا تھا، وہ آ کر چلا گیا لیکن پیچھے اپنے بہت سارے نشانات چھوڑ گیا ہے۔ بہت مایوس کن صورتحال ہے، یہاں پر جو سبزیاں ہیں وہ خراب ہو چکی ہیں، کسان انتہائی پریشان ہے۔ کتنا نقصان ہوا ہے سبزیوں کا یہ ہم ان سے جانتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کون سی سبزیاں متاثر ہوئی ہیں یہ سیلابی پانی سے، کتنا نقصان ہوا ہے اور کوئی امدادی ٹیم ادھر پہنچی تھی یا نہیں؟ کیا کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی امدادی ٹیم نہیں پہنچی۔ اساں جی حالات رائے گئے ہیں سارے کو نہ کوئی قسم دا بندہ نہیں آیا۔ کیا کون سی سبزیاں ہیں، کتنے ایکڑ ہیں وہ؟ توری ہے، کریلا ہے، کدو ہے، وسل ہے، یہ سبزی ہے۔ سارے سر تو کوئی نہیں پہنچا، پورے 15 جاڑے اساں رلتے رہ گئے، کوئی کتنا رقبہ ہے، کتنا نقصان ہوا ہے یہ؟ نقصان تقریباً کوٹلہ پورا ختم ہے۔ کوٹلہ میر حسن اپنا جتنا مکایاں ہیں جی کپاہ مکئی وال چاول اتو پانی ہٹ گئے، پھر گئے وہ چاول مرتے ہوئے۔ وہ تو موقع ہے، ہر شاید ایک گھندن سی موقع دوتے تلی بھی ختم ہو گئی، تلی مکایاں علاقے دے ڈھیر ہن۔ وسل کاشت آئی وہ ہی والا کان جڑا گرمی دے وچ تھی سندھ والا۔ ہاں ساڈا مطالبہ وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے اگر مہربانی کرے جے ساڈے نال کوئی امداد کر سکدے تاں اساں امداد منگدے ہیں، جے نہیں کر سکدا تو رزق میں اللہ اگے ہی دینا پہ بھوکے کائن سے سمدے پہ، جگر ان کو خدا ترسی آوے دے وے تا۔ جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کوٹلہ جو یہ میر حسن ہے جتنی بھی سبزیوں کی فصلیں ہیں وہ ساری تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ پانی یہاں پر آیا تھا وہ ان کو ختم کر برباد ہو گئی ہیں۔ اقبال صادق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے لیا کا، جہاں تحصیل چوبارہ میں بارش سے ہونے والے نقصانات کا سروے مکمل۔ چوبارہ میں بارش سے 4636 گھر متاثر ہوئے۔ متاثر ہونے والے گھروں میں 3006 گھر مکمل تباہ ہو گئے، جبکہ بارش کے دوران 1630 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ چوبارہ میں بارش سے 8 موازات بری طرح متاثر ہوئے۔ بارش متاثرین کے نقصان کے ازالے کے لیے پی ڈی ایم اے سے رابطہ کیا گیا ہے۔ جلد متاثرین کی مکمل امداد کی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اشفاق سیال کا ایسا کہنا ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں لیا میں تحصیل چوبارہ میں بارش سے ہونے والے نقصانات کا سروے مکمل کر لیا گیا۔ چوبارہ میں بارش سے 4636 گھر متاثر ہوئے۔
सरगोदा शहर भर में सफाई के नाकिस इंतजामात, कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद का तमाम यूसीज में सफाई के अबतर सूरत हाल का नोटिस। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। अच्छा, बिल्कुल जिला सरगोदा की बात की जाए तो शहर की तमाम 22 यूनियन काउंसिल में सफाई के नाकिस इंतजाम देखे जा रहे हैं और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस सफाई के जो नाकिस इंतजाम है उस हवाले से ये जवाब दे रही है कि उनके पास इनफरादी और मशीनरी कुव्वत का सामना है। इस हवाले से ये देखा गया है कि कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद की जानिब से नोटिस लिया गया है और तमाम जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान हैं उन्हें 15 दिन की मोहलत दी गई है और 15 दिन का ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर तमाम 22 यूनियन काउंसिल में सफाई के जो नाकिस इंतजाम है उसको बेहतर किया जाए और जहां जहां पर कूड़ा क्रिकेट जमा हो रहा है उसको सफाई की जाए। इस हवाले से देखने में आ रहा है कि एमसी का ये मौकफ है कि जिला भर में रोजाना की बुनियाद पर 400 टन कूड़ा जो है वो इकट्ठा होता है, जबकि अगर एमसी की पावर की बात की जाए तो उसके पास सिर्फ 250 टन कूड़ा ठिकाने लगाने की जो है गुंजाइश मौजूद है। और इस हवाले से अगर जो इनफरादी तादाद को भी बढ़ाया जाए और मशीनरी को भी तमाम तर बुरोकार लाया जाए तो फिर ही कोशिश की जा सकती है कि 400 टन रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा ठिकाने लगाया जा सकता है। ताहम जो डॉक्टर फराह मसूद है कमिश्नर सरगोदा, उनकी जानिब से तमाम एमसी के अफसरान को ये क्लियर कट हिदायत की गई है कि 15 दिन बाद उनकी जानिब से सरप्राइज विजिट की जाएंगी और जहां जहां पर यूनियन काउंसिल में कूड़ा क्रिकेट नजर आएगा वह सख्त कानूनी कार्रवाइयां और सफाई के नाकिस इंतजामात पर नोटिस लिया गया है। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे मियावाली का, जहां मेन गली कुंदिया में सीवरेज नाकारा हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में जमा, बदबू और ताफुन से इलाका मकीन परेशान हो गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कुंदिया शहर को नई आबादी और पुरानी आबादी से मिलाने वाली जो मेन गली है उसमें, और इसकी जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। यहाँ पे बारिश आ जाए तो उससे तो गली से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसके बरक्स इस गली में 24 आवर जो सीवरेज का पानी है जमा रहता है। मकीन जो यहाँ पे हैं इनका कहना है कि बदबू और ताफुन की वजह से जिंदगी अजीरन हो चुकी है। यहाँ पे कभी बच्चे गिर जाते हैं तो कभी बुजुर्ग गिर जाते हैं। और इस वक्त कुछ शहरी इस मोहल्ले के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे भाई, ये तो बहुत बुरा हाल है, क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या कहते हैं इंतजामिया वाले इस हवाले से? इंतजामिया का तो किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है। आप देख लें ये हालत है, बारिश आती है, बारिश के बगैर भी यहाँ ये हालत है कि अवाम के घरों का पानी जो है वापस उन्हीं के घरों में घुस जाता है। इस दिन पार्लियामेंटेरियन ने हमारे साथ वादे तो बड़े बड़े किए थे लेकिन कोई भी वफा नहीं हो रहा। देखें ये हालत हुई पड़ी है, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, कोई बच्चा नाली में गिर जाता है, अजीब सूरत हाल हुई पड़ी है। कोई इंतजामिया का ताउन नहीं है, कोई वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बहुत मुश्किल हालात है जी, मुश्किल हालात का गंदा पानी जमा है। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल में सड़कों की अबतर सूरत हाल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जाने वाली वाहिद सड़क टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही नदीम मुगल। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल उस्मान मौज़म रोड पर और आपको पता चलें कि ये वाहिद सड़क है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ साथ जो है दर्जनों गाँव को जाने के लिए शहरी जो है इस रोड से गुजरते हैं। और बारिशों के मौसम में इस रोड के साथ बड़े बड़े कट्स जो हैं वो लग गए, जिसके बायस जो शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और रोड के साथ 8 से 10 फुट तक की गहराई मौजूद है और कट्स लगने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। जी बताइएगा, इस रोड की अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जाने वाला जो है वाहिद रोड है और यहाँ की सूरत हाल है कि जगह जगह पर कट्स लगे हुए, क्या कहेंगे? जी, इस रोड को काफ़ी अर्से से ये रोड तकरीबन 2 साल के लगभग ये इस तरह ख़राब है। ट्रैफिक बहुत इंतहाई यानी कि जैसे मुश्किलात में इधर से गुजरती है। या अभी बारिशें हुई हैं, बारिशों से ये मज़ीद इसमें कट्स आ गए हैं। डिस्ट्रिक्ट DHQ को ये एक वाहिद रोड है जो जाता है जी, लेकिन उसके साथ ये नीचे देखेंगे ये 8 से 10 फुट जो है वो ज़मीन नीचे है, रोड ऊपर है, लेकिन कट्स की वजह से आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि ये इसको फिल फॉर जो है ना इस रोड को मरम्मत किया जाए, रिपेयर किया जाए, ताकि आवाम जो है ना वो अपने आराम से सफर कर सकें। जी बिल्कुल, लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना है और रोड को जो है वो मरम्मत नहीं किया जा रहा है जिला इंतजामिया की जानिब से। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो जगह है, देखें जहाँ पर बड़ी गहराई के जो है वो कट्स यहाँ पर लग चुके हैं। और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो रोड से तकरीबन कोई 7 से 8 फुट जो है यहाँ पर गहराई है। और इन कट्स की वजह से जब यहाँ पर ओवरटेक करती हैं गाड़ियाँ तो अक्सर जो है वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। और यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि 10 से 15 हज़ार लोगों का यहाँ से रोज़ाना रोज़
गुजर होता है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसात भी हो रहे हैं, लेकिन दुनिया की जानिब से सड़क जो पर गड्ढे पड़ गए हैं और सड़क टूट-फूट का शिकार है। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं मियांवाली में डीसी उमर शेर चट्ठा की ज़ेर सदारत तरक्याती कामों बारे जायजा इजलास में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त बारे जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत मियांवाली में 13 अरब की लागत से प्रोजेक्ट जारी हैं। डीसी ने मजीद कहा कि स्कूल एजुकेशन की 509, रोड सेक्टर 423 और हेल्थ सेक्टर की 15 स्कीमों पर काम शुरू है। उन्होंने मजीद कहा कि 60% से ज्यादा तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। बाकी स्कीमों की तकमील के लिए 31 अक्टूबर 2020 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। अंदरून शहर बहावलपुर में बिजली के लटकते तार खौफ की अलामत बन गए हैं, जबकि बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन। बहावलपुर अंदरून शहर में मोहल्ला अहमद नगर जो है वो शहरियों पे जो अंदर बिजली की तारें हैं वो हर वक्त खतरे की घंटी बजा रही हैं और हर वक्त उनके ऊपर जो है खौफ मंडला रहा है। तमाम जो गलियां हैं अंदर की जो तारें हैं वो सर को टच करती हैं और नंगी ये तारें हैं, जिससे अक्सर औकात मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद चिंगारियां भी निकलती रहती हैं। शदीद जो है मुश्किलात का सामना है और खौफ का सामना है मकीनों से बात करते हैं। ये कब से मसला दरपेश है? अच्छा बताइएगा, ये कब से मसला दरपेश है और हल क्यों नहीं हो रहा? ये सर बहुत अरसे से मसला दरपेश है हमें। यहाँ पर ये सारी नंगी तारें हैं, जब भी बारिश होती है इसमें से बहुत ज़्यादा चिंगारियां निकलती हैं और लोगों का आना जाना यहाँ पर हर वक्त है। कोई बड़े नुकसान का अंदेशा है हमें। बच्चे होते हैं मोहल्ले में, अल्लाह ना करे उनको कुछ हो जाए। वापडा वालों को बारहा बुलाया, वो यहाँ से एक तार जोड़कर चले जाते हैं, वो कुछ अरसे बाद फिर वैसी हो जाती है। देखें आप, सारा तारों का गुंजल है यहाँ पर और इसमें से इंतहाई से भी ज़्यादा स्पार्किंग होती है, जिससे हमें बड़े खतरात महसूस होते हैं। इस वजह से आप लोगों ने मैपको काम से बात नहीं की? हमने कई मरतबा उनको रिपोर्ट करवाई है, वो लोग आते भी हैं, फिर वो तार डार कर चले जाते हैं, लाइट आ जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे बाद फिर वही मसला शुरू हो जाता, महीने बाद, 15 दिन बाद। बिल्कुल हल नहीं निकल रहा। अकरम शीन आपको दिखा बिजली की लटकती तारों ने खतरे की घंटी बजा दी है। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर मुल्तान का शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ा कदम। कमिश्नर जावेद महमूद ने वासा की कारकर्दगी को मॉनिटरिंग के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं गौहर रहमान। जी बिल्कुल, कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ओहदे का चार्ज संभालने के बाद इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। खुसूस तौर पर म्यूनिसिपल सर्विसेज के हवाले से जो इदारे हैं जिन्होंने आवाम को डिलीवर करना है, उनमें रिफॉर्म्स का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से शहर ओलिया में साफ पानी के मसाइल और वाटर सैनिटेशन के मसाइल हल करने के लिए कमिश्नर मुल्तान की जानिब से खसूसी 2 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी के जो मेंबर हैं वो एसी सिटी आबदा फरीद को बनाया गया। इसके साथ साथ डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा को भी इस कमेटी का रुकन बनाया गया है। ये कमेटी वासा के हवाले से जो मसाइल हैं, शहर ओलिया में वाटर फिल्ट्रेशन वाला प्लांट्स है, ट्यूबवेल्स के मसाइल हैं और जो आइडेंटिफाई करेगी ये कमेटी हॉटस्पॉट्स एरियाज जहां पर मानसून में बारिशें हुई हैं, वहां पर पानी के मसाइल हैं, सीवरेज लाइनों के मसाइल हैं। ये कमेटी तमाम तर जो एक जामे रिपोर्ट बनाएगी और कमिश्नर मुल्तान को इस हवाले से पेश की जाएगी। और एक और जो मजीद कमेटी तश्कील दी गई है वो रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से तश्कील दी गई है। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है रब खान को शामिल किया गया है और कमेटी तश्कील दे दी गई है। गौहर रहमान आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे डीजी खान का, जहां वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से कबायली इलाकों के लिए तोहफा। कबायली इलाकों में रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अहकामात। कमिश्नर साजिद जफरडाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 15 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज फराहम की जाएंगी। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने मजीद कहा कि मोबाइल सेलुलर कंपनी के नेटवर्क रेस्क्यू के मुलाजमीन के लिए अलाउंस पर भी गौर किया गया। तो आपको बता रहे हैं डीजी खान में वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से कबायली इलाकों के लिए तोहफा। कबायली इलाकों में रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अहकामात। कमिश्नर साजिद जफरडाल की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पहले मरहले में 15 मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम की जाएंगी। कमिश्नर साजिद जफरडाल ने मजीद कहा कि मोबाइल सेलुलर कंपनी के नेटवर्क रेस्क्यू के मुलाजमीन के लिए अलाउंस भी दिए जाएंगे। 15 सितंबर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज। डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन काजी मोहम्मद खालिद ने कॉलेजेस की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी।
15 सितंबर से जो तालीमी सरगर्मी हैं उनका आगाज होना है, उस हवाले से तैयारियां भी मुकम्मल की जा रही हैं। इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन की जानब से भी अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम जो कॉलेजेस हैं मुल्तान डिवीजन के और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के जो SOPs हैं उन पर हर सूरत में अमल दरामद कराया जाएगा। और इस हवाले से जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको भी इस हवाले से जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। और इस हवाले से प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले से भी पॉलिसी को देखा जाए, उस हवाले से यही अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर जहां पर SOPs की खिलाफवर्जी की जाएगी तो वहां पर इस हवाले से कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। हमारे से इस वक्त डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, 15 सितंबर से तालीमी सरगर्मियों का आगाज होने जा रहा है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, तो प्राइवेट कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इस हवाले से क्या पॉलिसी है और इनकी मॉनिटरिंग किस तरह अमल में लाई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 15 सितंबर को हमारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो इस वक्त डिवीजन के अंदर ये तमाम सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं कि तमाम कॉलेजेस की सफाई सुथराई, उसको डिसइंफेक्ट करना और क्लीनिनेस को यकीनी बनाने के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तो हमारा प्लान ये है कि डिवीजनल लेवल पर डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं लोधरा, विहाड़ी, खानेवाला और मुल्तान, तो वहाँ हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो अपनी टीम के साथ कॉलेज विजिट करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस और सरकारी कॉलेजेस, जिसमें सरकारी कॉलेज में अगर कोई नाअहली पाई जाएगी तो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनाब तारिक हमीद भट्टी साहब ने पिछले हफ्ते यहाँ विजिट किया है और उन्होंने ये भी हिदायत जारी की है कि अगर कहीं ये कमी कोताही पाई गई तो उस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हम प्राइवेट कॉलेज का भी मैं वाज़ेह करता चलूँ कि हमें ये अहकामात हैं कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज इन SOPs पर अमल दरामद नहीं करता तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है, उस कॉलेज को सील भी किया जा सकता है। तो इसलिए हम फील्ड में होंगे और इन चीज़ों को आजकल हम चेक कर रहे हैं कि ये जो SOPs हैं इसको यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, इस हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बिलाल नियाजी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक जमाली क्रीम स्प्रेशन यूनिट पाउडर से दूध तैयार करने पर सरबमोहर, इरफान मेमन मोहम्मद बख्श खोया यूनिट मिलावटी दूध की फरोख्त पर सील। डीजी फूड अथॉरिटी करीम स्प्रेशन यूनिट, खोया यूनिट, करियाना और दीगर की चेकिंग। 15 फूड यूनिट सील कर दिए गए। राना फूड कैफे, मियां फूड कॉर्नर, मलिक फूड कॉर्नर, मेहरवी होटल सरबमोहर। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये कार्रवाई की गई। आपको बता रहे हैं डीजी खान फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक जमाली क्रीम स्प्रेशन यूनिट पाउडर से दूध तैयार करने पर सरबमोहर। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में क्लासेस शुरू करने की तैयारियां। UET मुल्तान में नई क्लासेस का आगाज 15 अक्टूबर से होगा। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अली रियाज। बिल्कुल, हुकूमती फैसले के बाद जहां तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान कर दिया गया है और 15 सितंबर से तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं उनको एक शेड्यूल के मुताबिक खोला जाएगा, तो इस सिलसिले में यूनिवर्सिटीज़ भी खुलेंगी और यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या SOPs होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो नए दाखिले हैं वो भी जारी हैं। तो मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान की यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में और मेरे साथ वाइस चांसलर साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि न्यू एडमिशन्स भी हैं और पहले से जो सीनियर क्लासेज उनको भी पढ़ाना है और कोरोना का चूंका भी उसके बाद के हालात हैं तो SOPs को फॉलो करना है, तो चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेंगे, तमाम तो चीज़ें जानते हैं। मेरे से वाइस चांसलर मौजूद हैं। सर से पूछिए, सर बताइएगा क्या प्लानिंग है? न्यू एडमिशन्स भी होंगे, वो स्टूडेंट्स भी होंगे और पहले के स्टूडेंट्स भी होंगे, मैथ्स होगा, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, हमारे 2016 जो सेशन एडमिट हुआ था, दे आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड देयर डिग्रीज एंड दे विल नॉट बी हियर एनी मोर। 2016 के बच्चे नहीं होंगे, तो हमारे पास 17, 17 और 19 3 सेशंस के बच्चे ऑन कैंपस आएंगे 15 सितंबर से इंशाल्लाह, जैसे कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। और हमने अपने टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है नश्तर मेडिकल हॉस्पिटल से, वहाँ से एक डॉक्टर साहब आए हैं, उनको ट्रेनिंग दे के गए हैं इसकी प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस इन्फेक्शन, और टीचर्स को हमने सर्टिफिकेट भी इसके दिलवाए हैं इस ट्रेनिंग के। दूसरा, हम जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए कंपलसरी है, टीचर्स के लिए भी क्लासरूम्स के अंदर और यहाँ बाहर ग्राउंड्स के अंदर जहाँ भी वो जाएंगे लाइब्रेरी के मास्क पहने और सैनिटाइजर्स उनके अवेलेबल होंगे उनके लिए। और फर्स्ट ईयर जो नई एडमिशन हो रहे हैं, ये हमारी क्लासें 15 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, तो एकदम जब 15 सितंबर से खुलेंगे तो यह रश की कैफियत नहीं होगी। हम सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होंगे और हमारे पास 3 सेशन होंगे तो इतना रश नहीं होगा।
اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کلاسز کا آغاز 15 اکتوبر سے ہوگا۔ علی ریاض آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی میں تعلیمی سلسلے کے آغاز پر تیاریاں شروع، نئے سیمسٹر اور تعلیمی سلسلے کے آغاز پر اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے لیکچر دیا گیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف عاصم صدیق۔ خواجہ فرید یونیورسٹی میں نئے سیمسٹر مختلف ڈپارٹمنٹس کے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی کووڈ-19 کے بعد کھولی جا رہی ہے 15 ستمبر کو، اس کے حوالے سے اساتذہ کو تربیت دی جا رہی ہے، کس طرح انہوں نے تعلیم کو جاری رکھنا ہے، بہترین تعلیمی نظام دینا، اس کے علاوہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کس طرح خود بھی بچنا ہے اور بچوں کو بچانے کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سلمان طاہر نے اس کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی اوپن ہو رہی ہے، بڑے عرصے بعد ایک ایسا تعلیمی سلسلہ جوڑا جا رہا ہے جو ایک منقطع ہو گیا تھا، تو کیسے یونیورسٹی اس کی تیاری کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو جی عاصم صاحب۔ ہم نے آج سب ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے کہ فال 2020 کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے۔ کرونا کے بعد ٹف سچویشن ہے، لیکن جیسے پنجاب میں باقی یونیورسٹیز نے فیصلہ کیا، ہم بھی 50% اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہیں وہ آئیں گے، 50% نیکسٹ ویک آڈ اور ایون کے ساتھ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اور کچھ کورسز ہم نے آن لائن کیے ہیں اور 60% ہم نے کلاس روم میں ان کو پڑھانے کا کیا ہے۔ اور ٹیچرز کو آج یہ ٹریننگ دی ہے کہ ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے کیسے بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، کیسے نالج ڈیلیور کرنا ہے، اور باقی جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹیچر کیسے فوکس ہو کے اور اسٹوڈنٹ فوکس ہو کے نالج لیتا ہے، انوویٹ کرنے کے لیے نالج کو اور انکوبیشن سینٹر ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی ہوں گی، یونیورسٹی کا مشن اور ویژن جو ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو ہم نے اس حوالے سے آج ڈسکشن کی ہے۔ الحمدللہ 15 سے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہم کیمپس میں ٹیچنگ شروع کرنے کو جا رہے ہیں، اور نیکسٹ ویک جو نئے اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیے ہیں وہ 27 اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے لیکچر دیا گیا ہے۔ بیورو چیف عاصم صدیق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ضلع ملتان کے ریونیو اسٹاف کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ جاری، ریونیو اسٹاف کو ریکوری میں اہداف حاصل کرنے پر تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک۔ جی بالکل، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہتر ریکوری کرنے پر بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ضلع ملتان کا جو ریونیو سٹاف ہے ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے جو ریونیو سٹاف کی خصوصی اجلاس میں ان کو مزید محنت کرنے اور ریکوری کو 100% تک رکھنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی اور ان کے کام کو بھی صلاح۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو طیب خان۔ جی سر، پٹواری گرداور اہمیت تو ابھی بھی قائم ہے اسی طریقے سے ریکارڈ کمپیوٹرائز ہو جانے کے باوجود، تو کس طریقے کی اب ریکوری کی صورتحال ہے اور کیا اپریسیشن جو ہے وہ دی گئی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی دفعہ بورڈ آف ریونیو نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ بورڈ نے کہا ہے کہ جو ہمارے اچھے ریونیو آفیسرز ہیں، جو ہمارے پٹواری جو اچھا کام کر رہے ہیں، اور گرداور جنہوں نے 100% واٹر ریٹ کو کیا ہے ریکور اور ایگریکلچر انکم ٹیکس لیا ہے، ان کو ہماری طرف سے اپریسیشن دیے جائیں۔ تو ان کا ہم نے پھر جو نام تھے وہ ان کو پرپوز کیے، اس کے اوپر ہمیں ممبر ٹیکسز نے جو ہے اپنی طرف سے اپریسیشن بھیجے ہیں ان کو، وہ ہم نے آج ان کو دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جو نیا ہمارے مالی سال کا جو ٹارگٹ تھا جس میں ہمارا واٹر ریٹ ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے، باقی ہمارا میوٹیشن فیس کے ٹارگٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارا رجسٹریشن کے ٹارگٹس ہیں، وہ ہمیں ملے ہیں۔ وہ پھر آج ہم نے اپنی فل اسکیل ریونیو کی میٹنگ کی ہے، اس میں پھر ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ اب اس کو بھی 100% انشور کیا جائے، تاکہ جیسے اس سال ان کو جو ہے یہ تعریفی اسناد ملے ہیں، اسی طرح سے اگلے سال بھی ان کو دی جائیں۔ جی بالکل، اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیے گئے ہیں۔ رضا ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خانپور کے شہریوں کے لیے خوشخبری، میونسپل کمیٹی میں ون ونڈو آپریشن کے انتظامات مکمل ہو گئے۔ ون ونڈو آپریشن کا آغاز 15 ستمبر سے کیا جائے گا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ٹوگر۔ جی بالکل، میونسپل کمیٹی خانپور میں ون ونڈو کا آپریشن وہ سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ 15 ستمبر کو یہ آپریشن سٹارٹ کیا جائے گا۔ جو ون ونڈو کے انچارج ہیں طاہر شاہ، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس ون ونڈو کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ عوام کے لیے احسن اقدام جو ہے اٹھایا ہے شہریوں کے لیے۔ یہ سیکرٹری صاحب لوکل گورنمنٹ کے حکم پر یہ ای گورنمنٹ کی بنیاد پر ون ونڈو آپریشن کا آغاز 15 تاریخ سے ہو رہا ہے،
जहां एक ही ब्रांच में रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और हाउसिंग स्कीमों के नक्शा जात जो हैं वो टाइम फ्रेम के तहत मंजूर किए जाएंगे, जिससे आवाम को तकलीफ से बचना पड़ेगा, क्योंकि आवाम को नक्शा मंजूरी में बहुत परेशानी होती थी, बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ता था। अब एक ही ब्रांच में ये तमाम मामलात होंगे और आवाम को इससे रिलीफ मिलेगा। और ये इस गवर्नमेंट का बड़ा अहसन इकदाम है। एक तो ये सारा रिकॉर्ड जो है ये कंप्यूटराइज हो जाएगा, दूसरा ये है कि इसमें हर कोई ऑफिसर, ऑफिशियल जो है ये इसको बराह रास्त, चाहे वो लाहौर में बैठा है, चाहे वो एसी साहब हों, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हों, चीफ साहब हों, कोई भी ऑफिसर है, वो इसको अपना कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अपने रिकॉर्ड को देख सकेगा और आवाम की और ब्रांच की प्रोग्रेस को वॉच कर सकेगा। जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन का आगाज 15 सितंबर से किया जाएगा। जिशान डोगर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में हल्का पीपी 216 की यूसी 20 में तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सके। यूसी 20 की मरकजी सड़क 3 माह गुजर जाने के बावजूद कारपेट ना हो सकी। नायब सदर तहरीक इंसाफ वाजिद शौकत का तामीराती काम का जायजा। इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया जुनेद अनवर ने। जी जुनेद, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के सूबाई हल्का 216 के जो तामीराती काम है वो अभी मुकम्मल नहीं हो सके। खास तौर पर जो गुलबर्ग की जो मरकजी सड़क है उसके ऊपर भी अभी काम जो है मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा नायब सदर शेख वाजिद शौकत की जानिब से सड़क के काम का जायजा भी लिया गया और काम को तेज करने की हिदायत भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद से बात भी करेंगे। शेख साहब, पीपी 217 की एक अहम यूनियन कौंसिल है यूसी 20, मगर काफी सारे तरक्याती काम रुके हुए, खास तौर पर यह मरकजी सड़क है, अभी तक इसको कारपेट नहीं किया जा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, पीपी 216 और यूनियन कौंसिल 20 में जहाँ पर हम मौजूद हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब और नदीम कुरैशी साहब के ताउन से सबसे ज़्यादा फंड्स जो हैं इस यूनियन कौंसिल में मुहैया किए गए हैं। ये जो सड़क है जुनेद, हमने सबसे पहले इसकी सीवर लाइन जो है वो कंप्लीट की है। सीवर लाइन में एक इशू होता है कि सीवर लाइन डलने के कम से कम 6 महीने के बाद तक हम सड़क नहीं बना सकते, ताकि वो जो मट्टी है जो उसने बैठना है सड़क ने वो बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आप देखेंगे कि इस पर रोड़ा और ये खाका डल चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये जा रही है सड़क कारपेट होने के लिए। तो मेरा जानता ख्याल है अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और ये जो मेन सड़क है ये शाह महमूद कुरैशी साहब और नदीम कुरैशी साहब के फंड से ये अगले हफ्ते ही से कारपेट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, इसको किस तरह देखते हैं कि इलाका मकीन भी बड़े मुतासिर होते हैं, ये सड़क एक मरकजी सड़क है, उनकी जानिब से भी आपके ऊपर प्रेशर है कि इसको जल्द मुकम्मल कराया जाए, आज आपने हिदायत भी दी है, क्या देखते हैं कि कितने दिनों में ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी? इंशाल्लाह ये विद इन अ वीक ये सड़क मुकम्मल हो जाएगी और हमने इसको बड़े ज़बरदस्त और मॉडल सड़क, हम नदीम कुरैशी साहब के विजन और शाह महमूद कुरैशी साहब के विजन के मुताबिक हम इस सड़क को एक मॉडल रोड बनाने जा रहे हैं। इसकी दोनों साइडों पे, गलियों की दोनों साइडों पे जहां जहां गलियां आएंगी वहां गली ग्रीटिंग बना रहे हैं। टफ टाइल्स हैं सड़क के साइड्स पर, यहाँ पे दरख्त हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं और ये एक मॉडल रोड के तौर पर हम इसको बनाने जा रहे हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये कारपेट होने जा रही है। मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जुनेद अनवर, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट करेंगे लोधरा से, जहां बस्ती दुरहट्टा में घर से सांप निकल आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को मार दिया गया। सांप की लंबाई 4 फीट से ज्यादा थी। रेस्क्यू के मुताबिक सांप देखकर खवातीन और बच्चे खौफजदा हो गए। तो आपको बता रहे हैं, लोधरा बस्ती दुरहट्टा में घर से सांप निकल आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को मार दिया गया। सांप की लंबाई 4 फीट से ज्यादा थी, रेस्क्यू के मुताबिक ऐसा कहना है, जबकि सांप देखकर खवातीन और बच्चे खौफजदा हो गए। तो आपको बता रहे हैं, लोधरा बस्ती दुरहट्टा में घर से सांप निकल आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सांप को मार दिया गया। मुल्तान से, जहां इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसलों में ताखीर का नोटिस। मॉनिटरिंग जज जस्टिस मंजूर अहमद मलिक ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का इजलास 19 सितंबर को लाहौर हाईकोर्ट में तलब कर लिया। दहशतगर्दी अदालतों के जजेस से परफॉर्मेंस रिपोर्ट 16 सितंबर तक तलब कर ली गई। कॉटन जोन में कपास की फसल पर व्हाइट फ्लाई का शदीद हमला हुआ है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी रज़ा मलिक। यही रहा है कि रवां बरस भी जो जरी जहर है जो कपास के हवाले से जो
पेस्टिसाइड्स है वो कपास की फसल पर जो है उस तरीके से असर नहीं कर रही है, और अभी से जो उसकी एफिकेसी पे जो है उसकी सवालिया निशान लगने शुरू हो गए, क्योंकि कहीं भी कॉटन जोन में कहीं पर भी वाइट फ्लाई, जिसकी वजह से पिछले साल जो कपास की फसल शदीद तौर पर मुतासर हुई थी, इस वक्त सितंबर में जो शदीद तरीन जो हमला है वाइट फ्लाई का वो कॉटन जोन में नजर आ रहा है, और कपास जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है, और मुमकिन तौर पर जो अहदाफ हासिल करना है जो मुकर्रर किए गए हैं हुकूमती सतह पर, वो नामुमकिन नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर कॉटन डॉक्टर सगीर अहमद। डॉक्टर साहब, शदीद तरीन हमला जो है इस वक्त वाइट फ्लाई का कॉटन जोन में नजर आ रहा है, पिंक बुलवॉर्म का खतरा भी अपनी जगह पे है, तो क्या मसाइल हैं और क्या अहदाफ हासिल हो पाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो सफ़ेद मक्खी का मसला है ना, ये 2015 से चला आ रहा है, और जो अहम वजह जो है ना, वो जो पेस्टिसाइड हमारे पास अवेलेबल हैं, दस्तयाब हैं, वो पुरानी हैं, और उनमें ये पौधे वो इंसेक्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस आ चुकी है। लिहाजा हमने एक स्टडी की है यहाँ कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान पर, तो मुख्तलिफ पेस्टिसाइड हमने सफ़ेद मक्खी और पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी के खिलाफ भी हमने देखी है, तो एफिकेसी 50% ज़्यादा नहीं है। तो एक जो वजह जो मेन है, इस दफ़ा पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी का हमला पिछले साल से बहुत कम था, लेकिन अब थोड़ा सा खतरा है। लेकिन सफ़ेद मक्खी मेन वजह है, और उसकी वजह से काली भी हो रही है। हमने एडवाइजरी दी थी, पहले भी दी थी, कि जब काली होने से पहले ही आप फंजीसाइड मिक्स करें, ताकि वो जो है आपके कपास काली नहीं होगी। लेकिन किसानों तक ये मैसेज सारे किसानों तक नहीं पहुंचा। कॉटन जोन में व्हाइट फ्लाई का शदीद हमला हुआ है। रजा मलिक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां कपास की फसल पर सफेद मक्खी का शदीद हमला हुआ है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। जी बिल्कुल, ऐसे कि कपास की फसल इस वक्त इंतहाई अहम मरले में है, और खास तौर पर सफ़ेद मक्खी और गुलाबी सुंडी तो काश्तकारों के लिए दर्द सर है। स्प्रे करते हैं, लेकिन सफ़ेद मक्खी का कंट्रोल अभी तक मुमकिन नहीं हो रहा। ओवरऑल इस वक्त पेस्टिसाइड की क्वालिटी की क्या सूरत हाल है, और कितने सैंपल हुए हैं, कितने रेड हुए हैं, कितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड बहावलपुर नजमुल हसन मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नजम भाई, फरमाइएगा क्या सिचुएशन है? काश्तकार कहते हैं स्प्रे कर रहे हैं, सफ़ेद मक्खी का खात्मा नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये हमारा कुछ सफ़ेद मक्खी का इस साल का इशू नहीं है, पिछले 10 साल से हमारा ये एक इशू बना हुआ है। उसमें एक सिर्फ दवाई का फैक्टर नहीं है, उसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं कि टेम्परेचर जो मौसमियाती तब्दीली है उसका एक बहुत बड़ा असर है। दूसरा जो वक्त काश्त है उसके बारे में बड़े सारे एक अभी तक इस पर काम हो रहा है। उसके अलावा स्प्रे का तरीकाकार है, टाइम ऑफ स्प्रे है, और उसके अलावा जो डोज जिम्मेदार डाल रहा है, और असल में बड़े सारे ये फैक्टर्स हैं, कोई एक दवाई फैक्टर नहीं है इसमें। अब इंशाल्लाह नए हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं साउथ पंजाब के, जनाब साकिब अली साहब, तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है। इंशाल्लाह आने वाले साल में इस पे इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया है। अथल आशारी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला। मुल्तान शहर में मौजूद वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी खोल दिया जाएगा। तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, तालीमी इदारे चूंकि 15 सितंबर से खोलने का ऐलान कर दिया गया है, इसीलिए जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम्स और हुनरमंदी के इदारे हैं वो भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनतजार ने भी दाखिलों का ऐलान कर दिया है। 3 माह और 6 माह के कोर्सेज के लिए दाखिलों का आगाज 5 महीने बाद हो चुका है। सनतजार में खवातीन जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं दाखिले के लिए, जो यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स, सिलाई कढ़ाई का कोर्स और उसके साथ साथ दीगर जो कोर्सेज हैं हुनरमंदी के, वो यहाँ पर सीख सकती हैं। दाखिले जो हैं वो जो खवातीन मुस्तहिक हैं उनको मुफ्त दाखिले भी हुनरमंदी के इदारे भी 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। सुहेरा तारिक, आप तफसीलात बता रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बिजली चोर होशियार खबरदार, भारी जुर्मानों के साथ हवालात की सैर भी कराई जाएगी। चीफ इंजीनियर TNG मैप्को इंजीनियर अब्दुल रहीम सुमरो का दौरा मुजफ्फरगढ़ में ऐलान। मैप्को सर्कल में तमाम एक्सियन के साथ मीटिंग की, फील्ड अफसरान को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। आपको बता रहे हैं बिजली चोर होशियार खबरदार, भारी जुर्मानों के साथ हवालात की सैर भी कराई जाएगी।
मुल्तान में डिविजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का हफ्ते के रोज डिवीजन भर में एंटी डेंगू डे मनाने का ऐलान। दफ्तर में सफाई खुसूसन डेंगू कंट्रोल बारे फोकल पर्सन नामजद करने का ऐलान। कहते हैं नाकारा चीजों को तल्फ और दफातर में स्प्रे करवाया जाएगा। आपको बता रहे हैं मुल्तान में डिविजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा की सरबराही में इजलास हुआ। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। खान में 21 तारीख से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है और इसकी भरपूर तरीके से तैयारी भी की जा रही है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी की सरबराही में WHO के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ मीटिंग भी हो। इसके अलावा और UCMOs की तरबियत भी की जा रही है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहावलपुर में केस आ गया, इससे पहले रिम्बिया खान से मुत्तसिल जितने भी अजला में उसमें केस पॉजिटिव आ चुके हैं और बड़े हाई अलर्ट है और ख़ास तौर पर दरियाई इलाका जो है उसमें पानी की आमद है। इस सूरत हाल में तो मीटिंग्स भी आपके आ रहे हैं, WHO के नुमाइंदों के साथ तरबियत भी की जा रही है, तो कैसे भरपूर तरीके से इसको कामयाब किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने खुद बताया कि सूरत हाल पोलियो के हवाले से इस रीजन में काफ़ी तशवीशनाक है। हमारे जितने भी हमसाया अजला हैं उनमें पिछले चंद माह के दौरान पोलियो के केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा ज़िला पोलियो फ्री है और इस पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और हमारी फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम के अरकान और हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस इसमें अनथक मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अगर यही जज्बा बरकरार रहा तो हम अपने ज़िले का पोलियो फ्री स्टेटस बरकरार रखने में कामयाब होंगे। मुल्कगीर इंसदाद पोलियो मुहिम जो है 21 सितंबर से शुरू हो रही है, उसकी तैयारियों का आगाज़ हम 4 दिन पहले से कर चुके हैं। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम के अरकान की जो तफसीली ट्रेनिंग्स करवाई हैं, उसके बाद जो हमारे यूनियन काउंसिल के सुपरवाइजर्स होते हैं, UCMOs और एरिया इंचार्जेस, उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और जो पिछली कैंपेन्स में हमारी कारकर्दगी थी ज़िले की, उसके हवाले से एक रिव्यू मीटिंग आज हमने यहाँ पे की है, जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविंशियल ऑफिस से भी नुमाइंदे आए हैं और डिविजनल ऑफिसर्स भी हैं और हमारी जो यहाँ पे पोलियो एडिकेशन ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और हमने तफसीली जायजा लिया है कि कहाँ पे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जो दरियाए सिंध है उसमें इस वक्त एक तूफ़ानी सूरत हाल है और काफ़ी मुआवज़ात जो हैं वहाँ पे पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से नकल मकानी भी करनी पड़ी है। तो हमने जिन यूसीज इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ है। दूसरी जानिब बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ रवां साल की तीसरी मुहिम 31 सितंबर से शुरू होगी। मुहिम के लिए महकमा हेल्थ ने अफसरान और एरिया इंचार्जेस का तरबियती सेशन में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, UCMOs की शिरकत। 5 रोजा मुहिम के दौरान बहावलपुर के 7,29,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर में पोलियो के खिलाफ रवां साल की तीसरी मुहिम 21 सितंबर से शुरू होगी। मुहिम के लिए महकमा हेल्थ ने अफसरान और एरिया इंचार्जेस का तरबियती सेशन मुकम्मल करवाया। तरबियती सेशन में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स, UCMOs की शिरकत। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।